رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ شہر گلبرگہ میں حافظ محمد علی الحسینی صاحب کی صدارت میں اور گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ فراز الاسلام کی نگرانی میں وقف بل کے خلاف چلو نگریشور اسکول تاریخی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شہر گلبرگہ میں بسوا جینتی کو مناتے ہوئے یہاں کے روڈ راستوں پر ریلی نکالتے ہوئے لوگوں میں بسونا کی ٹیچنگز کو کیا گیا عام۔ حج 2025 کے پیش نظر حج 2025 فلائٹس کی انوگریشن سیریمنی میں بڑی نامچین سیاسی ہستیوں کے ساتھ گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے بھی شرکت فرمائی۔ گرمیوں کے موسم میں عوام پانی کے مسئلے سے ہے دوچار اور ان کی پانی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جناب سید جیلانی پیر قادری صاحب نے وارڈ نمبر 6 میں پرائیویٹ پانی کے ٹینکرز بھیجے۔ گلبرگہ ایس ڈی پی آئی پارٹی لیڈر سید علیم الہی نے کشمیر ٹیرر اٹیک پر اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہوئے حکومت پر مودی گورنمنٹ پر لگائی پھٹکار۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ راجدھانی دہلی اور سینٹرل گورنمنٹ بی جے پی گورنمنٹ کو بڑے ہی پرزور انداز میں بڑی کثیر تعداد میں لاکھوں کی بھیڑ کے ساتھ گلبرگہ شہر میں وقف بل کے خلاف چلو نگریشور اسکول احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں گلبرگہ شہر کی وہ معروف اور نامچین ہستیوں کو دیکھا گیا جنہیں شاید روڈ راستوں پر اس طرح سے بڑا کم دیکھا جاتا ہے۔ ہر وہ انسان جو کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے، انہیں بھی اس تاریخی احتجاجی ریلی میں وقف بل کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ گلبرگہ شہر کے گلی کوچوں روڈ راستوں سے گزرتا ہوا یہ بڑا سا مجموعہ، لاکھوں کی تعداد میں یہ بڑا سا ہجوم سینٹرل گورنمنٹ بی جے پی حکومت کو بس یہ پیغام دیتے ہوئے دکھائی اور سنائی دیا کہ مسلمان وہ مضبوط قوم ہیں جنہوں نے 65 اور 71 کی لڑائیوں میں جنگ میں اپنے سر خم کر دیے، انہیں ہلکے میں نہ لیں، کہ جب یہ قوم اپنے پر آ جائے، اپنے حق کو حاصل کرنے کی ٹھان لے تو پھر انہیں روکنے کے لیے آپ کا سسٹم فیل ہو جائے گا۔ ہاں، یہاں پر موجود مسلمانوں اور لوگوں نے سبھی کو بس یہی پیغام دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی نہ کی جائے، ان کی زمینوں کو کوڑیوں کے دام پر ملٹی نیشنل کمپنیز کو چندے میں نہ دیا جائے۔ اس طرح کی غلط سوچ کو اور چال کو ہم سبھی ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان میں رہنے والے سچے ہندوستانی کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا اس بل کو جلد سے جلد واپس لیا جائے، ورنہ آنے والے دنوں میں یہ لوگ آندھی اور طوفان کی طرح سے اپنی گرجدار آواز میں قیامت برپا کر دیں گے۔ بتا دیا جائے کہ 27 اپریل 2025 اتوار کے دن گلبرگہ شہر میں نکالی گئی وقف بل کے خلاف یہ تاریخی احتجاجی ریلی یقیناً ان لوگوں کے حوصلے ضرور پست کریں گی جو کہ مسلمانوں کے خلاف یہ سازش رچ رہے ہیں اور ان سے ان کی زمینوں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہسٹوریکل ریلی نے یہ بتایا کہ یہاں کے مسلمان اپنے ساتھ ہو رہے اس ناانصافی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور اس بل کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر اسے کینسل کرتے ہیں۔ نہ صرف گلبرگہ شہر بلکہ ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں ہر دن اس بل کے خلاف ایسے ہی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایسے میں یہ حکومت کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس بل کو یہاں پر ہرگز بھی لاگو نہیں کیا جا سکتا، اس بل کو کوئی بھی یہاں پر ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ شہر بنگلور میں آج 30 اپریل 2025 بروز چہارشنبہ بتی گل مہم چلاتے ہوئے سبھی جگہوں پر اندھیرا کرتے ہوئے تمام شہریوں نے اپنے شاپس دکانیں بند کر کے ساتھ ہی اپنے گھروں میں اس وقف بل کے خلاف اندھیرا کرتے ہوئے بتی گل کرتے ہوئے نیلا سندرا آن نیپالیا بنگلور میں خاموش احتجاج 9 بجے سے 9:15 بجے کرنے کا اہتمام کیا۔ اور اسی بتی گل مہم کو سپورٹ کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یوتھ فیڈریشن آف گلبرگہ کے لیڈران نے بھی تمام ملک کی عوام سے یہ اپیل کی کہ وہ آج 9 بجے سے 9:15 بجے تک تمام عوام الناس 15 منٹ اپنے شاپس دکانیں اور گھروں میں روشنی کو لائٹس کو آف کر کے اس خاموش احتجاج میں اپنی حاضری لگاتے ہوئے اس غلط بل کے خلاف خاموش احتجاج میں شامل ہو جائیں اور حکومت کو یہ بتائیں کہ ہم اس غلط بل کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، لہٰذا اس بل کو جلدی واپس لیا جائے۔
इसी खबर और इत्तला को देते हुए राब्ता न्यूज की पूरी टीम भी गुलबर्गा शहर और तमाम मुल्क के मुसलमान सेक्युलर अवाम से अपील करती है कि वो आज 30 अप्रैल 2025 रात 9 बजे से 9:15 बजे तक यानी कि 15 मिनट अपने शॉप्स दुकानें बंद करके अपने घरों में लाइट्स को बंद करते हुए अंधेरा करते हुए इस खामोश एहतजाज में शामिल होकर इस बिल को वापस लेने की हुकूमत से डिमांड करें। आज यानी 30 अप्रैल रात के 9 बजे से 9:15 बजे तक सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आप सभी को अपनी सारी लाइट्स बंद करनी हैं। आप जहां भी हो, घर पर या दुकानों में, मिल में या ऑफिस में, फैक्ट्री में, फ्लाइट्स में हो या बाजारों में, अपनी दुकानों की लाइट्स बुझा दें, अपनी घरों की लाइट्स बुझा दें। और अगर आपका दिल ना भी चाह रहा हो तब भी कौम के साथ एकजहती का सबूत दें, क्योंकि हमारे तमाम कायदीन इस बात पर मुत्तफक हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हमें हमेशा खड़े रहना है और अल्लाह की ज़मीनों के लिए ये लड़ाई हमें लड़नी है और हर तरह के एहतजाज में हमें साथ रहते हुए एकजहती का मुजाहिरा करना है। लिहाजा आखिर में ये उम्मीद की जाती है और दुआ की जाती है कि आज अपनी हुकूमत और सभी को हमारी एकता और ताकत देखने को मिले। शहर गुलबर्गा की मारूफ पॉलिटिकल पार्टी SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक्टिव लीडर सैयद अलीम इलाही ने कश्मीर टेरर अटैक के मुतालिक वो बातें बताई और बीजेपी गवर्नमेंट मोदी हुकूमत को लेकर वो खुलासे किए कि जिसको सुनना और समझना आज हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। आइए देखते और सुनते हैं कि सैयद अलीम इलाही ने कश्मीर टेरर अटैक को लेकर अपने गुस्से को जाहिर करते हुए मोदी गवर्नमेंट के बारे में आखिर क्या कहा। पाकिस्तान का अगर इसके अंदर डायरेक्ट अगर इन्वॉल्वमेंट है तो सरकार क्या छक मार रही है क्या? सरकार जो 12-13 साल से इनकी सरकार है, इनकी सरकार आई थी इसीलिए कि कश्मीर में आतंकवादी हमले ना हो, लेकिन हुआ क्या? उसके बाद लगातार पुलवामा अटैक हो, अलग अलग अटैक्स हो, लगातार आज तक 75 साल में इतने बड़े बड़े अटैक्स नहीं हुए। जब से मोदी सरकार आई है लगातार अटैक्स हो रहे हैं, लगातार चाइना हमारे पास घुस रहा है, लगातार पाकिस्तान हमारे को चैलेंज कर रहा है। ये सरकार क्यों उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही, क्यों उसके खिलाफ लड़ नहीं रही? क्या इनके पास दम नहीं है? तो क्यों नहीं दिखा रही है? दिखाना चाहिए। हम पूरे भारतीय मुसलमान हम उनके साथ खड़े हैं, हमारे इंडियन आर्मी के साथ हम खड़े हैं, हमारे इस देश की तमाम जनता के साथ खड़े हैं। हमला हुआ कश्मीर के अंदर, उसी वक्त पूरे मुसलमान अपनी मगरिब की नमाज पढ़कर पूरे देश भर में सड़क पर उतरे हैं। हाफिज जुनैद को वो मुसलमान है बोलकर उसको मारा गया। ट्रेन में आप जानते हैं कोविड के टाइम पर पुलिस ऑफिसर ने तू मुसलमान है क्या बोलकर गोली मारा उसको। तो टेररिज्म सिर्फ यहाँ पर नहीं है। टेररिज्म जिस तरीके से हिंदुत्व फैशिज्म में टेररिज्म है, उसी तरीके से जो इस्लाम के नाम पर जो लोग टेररिज्म कर रहे हैं वहां पर भी टेररिज्म। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यूनिटी के जरिए से दे सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सब यूनिटी अगर होगा तभी जाकर इन लोगों का जवाब दे सकते हैं हम लोग। जब तक इस तरीके के जो सोच रखने वाले फैसिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तब तक ये नहीं रुकेगा। हाल ही में शहरी गुलबर्गा में वाक़ई जिम्स कॉलेज के अहाते में गुलबर्गा जिम्स आविर्भवा के 5वें कॉन्वोकेशन का इफ्तिताह किया गया। जी हां, जिम्स कॉलेज के अहाते में गुलबर्गा जिम्स आविर्भवा के 5वें कॉन्वोकेशन सेरेमनी का इफ्तिताह किया गया। इसको करने के पीछे का मकसद ये रहा कि गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को बुनियादी सहूलियात से आरिस्ता किया जाए। बता दिया जाए कि गुलबर्गा जिम्स आविर्भवा का ये 5वां कॉन्वोकेशन एक माने खैज तकरीब था, जिसमें सभी स्टूडेंट से बड़ी अच्छे अंदाज में शिरकत करते हुए तालीम की अहमियत को उजागर किया। लिहाजा इस मौके पर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, लेक्चरर्स और कॉलेज के तलबा कसीर तादाद में यहाँ मौजूद दिखाई दिए। राब्ता न्यूज के नाजरीन को एक अहम इत्तला दी जाती है, जिसका अनाउंसमेंट मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने किया। जी हां, उन्होंने बताया कि कल 29 अप्रैल 2025 को गुलबर्गा शहर के शाणा बसवेश्वरा जात्रा मैदान में शाम के 5 बजे 892 बसवा जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में सभा का आयोजन करते हुए बसवन्ना के टीचिंग्स, उनकी सोच का खुलासा किया गया। फिर अगले दिन यानी कि आज 30 अप्रैल 2025 को सुबह 9 बजे ध्वजारोहण, परचम कुशाई करने के बाद बसवा जयंती के पेश नज़र यहाँ एक बड़ी रैली निकाली गई। लिहाजा बसवन्ना के तत्वों में यकीन रखने वाले तमाम लोगों ने डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल के कहने पर इस रैली में कसीर तादाद में शामिल होकर बसवा जयंती को मनाया।
इस समर सीजन गर्मा के मौसम में कड़ी धूप के साथ साथ पानी की कमी और किल्लत का मसला गुलबर्गा शहर के साथ साथ आसपास के शहरों इलाकों में बड़ा मसला और परेशानी बनता जा रहा है, जिसके चलते आवाम बड़ी परेशान है और अपनी बुनियादी जरूरत पानी को हासिल करने के लिए रोजाना आवाम बड़ी जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा इसी मसले के पेश नजर बता दिया जाए कि रायचूर शहर में वार्ड नंबर 8 कोट्टलर झंडा कट्टा में पिछले 6 दिन से पानी नहीं आने की वजह से वहां की आवाम बेहद परेशान थी। लिहाजा आवाम की इसी परेशानी को दूर करने के लिए जनाब सैयद जिलानी पीर कादरी साहब ने प्राइवेट टैंकर्स पानी के टैंकर्स भेजे और इन टैंकर्स के जरिए से आवाम तक पानी को पहुंचाया और कुछ हद तक आवाम के इस परेशानी को दूर किया। हज 2025 के पेश नज़र इस साल हज के सफ़र को जाने वाले तमाम आज़मीन हज के लिए बड़ी ख़ास और अच्छी खबर कि कल बेंगलोर शहर में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से तमाम अहम और ज़रूरी मेंबर्स और ऑफिसर्स के साथ एक ज़रूरी मीटिंग की गई, जिसमें तय पाया कि इस साल हाजियों के साथ फ्लाइट के सफर और हज के सफर के दौरान 2 हज इंस्पेक्टर्स को उनके साथ भेजा जाएगा ताकि हज के सफर में हाजियों को कोई भी तकलीफ और परेशानी पेश न आए। जी हां, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फिकार अहमद खान साहब ने अंजाम दिया बड़ा ही बेहतरीन कारनामा। खादिमुल हुज्जाज जो कि हज इंस्पेक्टर्स के नाम से अब मशहूर हैं, उनके एक बड़े मसले और परेशानी को जुल्फिकार अहमद खान साहब ने हल कर दिखाया। बता दिया जाए कि इस साल इन तमाम सिलेक्टेड स्किल्ड 51 हज इंस्पेक्टर्स को उनकी रेगुलर सैलरी के साथ हज के दौरान हाजियों की खिदमत करते हुए उन्हें हज पर जाने का मौका दिया जा रहा है, जबकि पिछले सालों में ये निज़ाम था कि ये कादिमुल हुज्जाज हज इंस्पेक्टर्स जो कि सरकारी मुलाजिमीन होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट कामों से छुट्टी लेकर हाजियों की खिदमत करने के लिए सफर हज की तरफ जाते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई भी सैलरी तनख्वाह नहीं दी जाती, उन्हें सिर्फ छुट्टी ही दी जाती थी। लेकिन इस बार टीपू साहब की कोशिश के चलते अब तमाम हज इंस्पेक्टर्स को पेड लीव की सहूलत दी जा रही है, यानी कि उनकी तनख्वाह में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी बल्कि उन्हें इस खिदमत के लिए सैलरी दी जाएगी। लिहाजा इस मौके पर तमाम हज इंस्पेक्टर्स ने चेयरमैन साहब और तमाम हज कमेटी के जिम्मेदारान का दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ ही एक और इत्तला नाजरीन को दे दी जाए कि हज 2025 के पेश नज़र शहर बेंगलोर के हज भवन में हज फ्लाइट 2025 की इनॉग्रेशन सेरेमनी कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया के हाथों अमल में लाई गई। जी हां, इस साल हज के सफ़र को जाने वाले तमाम आज़मीन हज को महफूज और बाबरकत सफ़र की ख्वाहिशात के साथ हज भवन बेंगलोर में कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया साहब के हाथों हज परवाज़ों की इफ्तिताही तकरीब को अंजाम दिया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा ने भी शिरकत फरमाई। चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया के साथ अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद खान, मौलाना इमरान मकसूद रशादी साहब, बीजर ज़मीर अहमद खान, हज मिनिस्टर रहीम खान, पॉलिटिकल सेक्रेटरी बराए वजीर बराए औकाफ जनाब नसीर अहमद ने भी इस तकरीब में शिरकत फरमाई। साथ ही इस मौके पर जनाब नसीर हुसैन, MP राज्यसभा और MLC जनाब सलीम अहमद भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए। नाज़रीन को इसी के मुतालिक एक और अहम बात भी बता दी जाए कि हज के सफ़र को जाने के लिए पहली, दूसरी और तीसरी फ्लाइट बेंगलोर शहर से आज 30 अप्रैल 2025 बरोज़ चाहशुमा उड़ान भरेंगे, जो कि पूरी तरह से तैयार है। और पहली फ्लाइट में 338 हाजी लोग हुजाज कराम हज के सफ़र को रवाना होंगे और इस बार पहले ही इन हाजियों के लिए एकोमोडेशन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अलॉट की जा चुकी है, जिससे हाजियों को अब कोई भी परेशानी पेश नहीं आएगी। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।